Jai Hind students. So today we will discuss the rest of the questions of exercise 6.3 tangent and normal. So yesterday we did up to 10th question. Now we will start from 11th question. Slowly you will come to know how many types of questions are there in this exercise. Before I start, those who are new to the channel, press the subscribe button and press the bell icon and like button also. Now question number 11. Question number 11 is, find the equation of all lines having slope 2 and which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 3. Now slope is given to you. We have to find out the equation of all the lines and in which tangent to the curve is given. So solution, y is equal to 1 upon x minus 3. Find out the slope of tangent to the curve. So that is dy upon dx is equal to, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, u अपॉन v का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर. Now it is given that the slope is 2 and this is slope of tangent, so both the slopes are equal. So slope हमें कितनी दे रखी है, माइनस 1 is equal to 2. So क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. So there is no slope of the tangent. There is no slope of the tangent whose slope is 2. कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं है जिसकी स्लोप कितनी है, 2 हो. So it is not possible. So there does not exist any kind of tangent having slope 2. Now come to next question. Problem 12. Find the equation. Same question है, थोड़ा सा डिफरेंस है. Problem 12. Find the equation of all lines having slope. So slope is given 0. Which are the tangent to the curve? So यहां पे भी tangent to the curve. Y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. ये है, you have to find out the equation of all the lines. So same solution, slope is given to you, we have to find out the slope of the tangent and then we will make them equal. So y is equal to 1 upon x square minus 2x plus 3 dy upon dx, यानी slope of tangent to the line. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, 1 का करेंगे 0, तो 1 का 0 आ जाएगा. देन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे 2x माइनस 2. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस 2x plus 2 upon x square minus 2x plus 3 का whole square. Now slope is given to you 0. This is also a slope of tangent. दोनों को equate करते हैं. 2x plus 2x square minus 2x plus 3 that is equal to 0. Now what is left with you? ये 0 हो गया, minus 2x plus 2 is equal to 0, minus 2x is equal to minus 2, x is equal to 1. We have to find out the equation of lines जिसकी slope ये दे रखी है. Equation of line बनाने के लिए we need points. तो एक x का point आ गया. Now put here, put in equation first. So this is your first equation. So y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1/1 -2 + 3। ध्यान से देखें, 1/1, 1 का स्क्वायर 1 -2 + 3, तो 4 - 2, यहां 4 - 2 1/2। तो पॉइंट आर x का 1, y का 1/2, स्लोप कितनी है 0। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी, y - y1 = स्लोप x - x1। सो y - y1 कितना है 1/2, स्लोप 0, x - 1, ये 0 हो गया। सो y - 1/2 = 0। So y = 1/2 is the equation of line whose slope is given 0. Pause the video to note down. So in this question, it's important question. Question is find all the points. I not written here. Find all the points of equation of curve this at which, जिसमें जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। So solution, we have to find the point. So equation of curve, that is x² / 9 plus y² / 16 is equal to 1. Okay, now this is the equation of curve. ये equation of curve है। First of all we will find out dy/dx, यानी कि slope of tangent, क्योंकि टेंजेंट की जो स्लोप है वही पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, और सेकंड केस में परपेंडिकुलर है किसके, y एक्सिस के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये बना 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, 2 कॉमन आया, उधर गया 0 हो गया। dy/dx is equal to 2x/9 multiply 16/2y minus 2x/9, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। So what is left? dy/dx is equal to -16x/9y. This is slope of the tangent to the curve. Now the question is, ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट, दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो आई टॉट यू दैट कोई भी लाइन की स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसका मतलब जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के। यानी dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 0। तो -16x/9y इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। देन सेकेंड, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो यहां पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो y², ये 0 हो जाएगा, y²/16 इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 16। सो कितना पॉइंट आ गया, y इज इक्वल टू ±4। तो पॉइंट्स आर 0, 4 and 0, -4. Now second part क्या है, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है किसके, y एक्सिस के। ध्यान से देखना, स्लोप जो बनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो क्या होता है उस केस में, क्या होता है, दैट इज, ये भी बताया गया था dy/dx क्या हो जाता है,
not defined. Not defined means 1 upon 0. So slope minus 16x upon 9y is equal to 1 upon 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 0. अगेन पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1. तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो पॉइंट्स क्या बनेंगे, 3 0 एंड माइनस 3 0. Pause the video to note down. Come to question number 14. It has 5 parts. So fifth part is more important than rest of the part, but you have to solve all the parts. So first of all this, find the equation of tangent and normal. What is the equation of tangent and normal that I am writing here? Equation of tangent is y minus y1 slope यानी dy upon dx x minus x1. ये टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x1. दिस इज स्लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर गिवन टू यू. दिस x1 एंड y1 इज गिवन टू यू. वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स फर्स्ट. सो डिफरेंशिएट with respect to x. dy upon dx equal to 4x का क्यूब माइनस 18x का स्क्वायर प्लस 26x minus 10. Now we have to find out dy upon dx at these point. Slope point पे निकाली जाती है. So dy upon dx when 0 5 यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, तो x की ही पुट होगी. सो 4 इंटू 0 माइनस 18 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10. सो व्हाट इज द स्लोप, दैट इज माइनस 10. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट xy x माइनस x1. यानी जो भी पॉइंट होते हैं x1 y1, जैसे यहां पे ये पॉइंट है, दैट इज y माइनस y1 5 इज इक्वल टू dy अपॉन dx माइनस 10 x माइनस 0. सो आंसर इज माइनस 10x को इधर लाते हैं. सो 10x plus y minus 5 is equal to 0. This is the equation of tangent. Now find out equation of normal. So मैं यहां पे find out करता हूं equation of normal. So equation of normal that is वो कितनी होगी, equation of normal वो होगी y minus y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y1 x माइनस x1. सो y माइनस y1, व्हाट डू यू मीन बाय y1? y1 कितना है 5 माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी माइनस 10 x माइनस x1 x माइनस 0. ये कैंसिल आउट, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. सो ये बना 10y माइनस 50 इक्वल टू x. सभी टर्म्स को उधर लेके जाते हैं. x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. द स्टेटमेंट इज सेम, द पॉइंट्स आर डिफरेंट. तो एट पॉइंट. सो नाउ सेकेंड पार्ट मैं इसी में लिख देता हूं, यहां पे पॉइंट्स चेंज कर देते हैं. दैट इज 1 3. सो इसको रब कर देते हैं हम.
ओके, ये सेम रहेगा, ओनली द पॉइंट्स आर डिफरेंट. सो dy अपॉन dx एट पॉइंट 1 3. सो पुट करते हैं 4 1 1 का क्यूब 1 माइनस 18 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप कितनी आ जाएगी 4 माइनस 18 26 माइनस 10 प्लस 16 16 प्लस 4 20 20 माइनस 18 2. So dy upon dx 1, 3 that is equal to 2. Now we have to find out equation of tangent. और equation of tangent का जो फॉर्मूला होता है, equation of tangent that is y minus y1 equal to dy upon dx at point x1 y1, जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं x minus x1. So now put the value here, y minus y1, y minus 3. What is the slope? 2, x minus 1. So y minus 3 equal to 2x minus 2. So ये आ जाएगा कितना? It implies, ये इसको इधर ले जाते हैं 2x minus y, ये उधर जाके प्लस का होगा, ये माइनस 2 है तो ये बन जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. नाउ सेकेंड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये फॉर्मूला होता है. सो y माइनस y1 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx कितना है 2 x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1. इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है. सो x प्लस का 2y, ये उधर गया माइनस 7 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन पार्ट. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1 1. सो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट पॉइंट दिस. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. So dy upon dx is equal to 3x का square. So dy upon dx at 1 1 that is equal to 3. Now equation of tangent वो कितनी होती है y minus y1 equal to dy upon dx at 1 1 x minus x1. तो which implies y minus 1 slope 3 x minus 1 y minus 1 3x minus 3. Take this term that side 3x minus y, ये वहां गया प्लस minus 2 equal to 0. This is what? This is slope of equation of tangent. Now equation of normal. Equation of normal, that is y minus y1 equal to minus 1 upon dy upon dx 1 1 x minus x1. y minus, what is y1? y1 कितना है 1 minus 1 upon dy upon dx that is 3 x minus 1 3y minus 3 equal to minus x plus 1. So इसको इधर लाते हैं, इस बार ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. x plus 3y minus 4 equal to 0. So this is the equation of normal to the curve. Now come to next fourth part. तो fourth part हमें क्या कहता है, y is equal to x square at 0 0. So first of all dy upon dx स्लोप निकालनी है क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में स्लोप यूज होती है. सो दैट इज 2x 0 पुट करेंगे dy upon dx कितना आ जाएगा 0 0 पर स्लोप इज 0.
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y माइनस y1, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप कितनी है? 0, x माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया? नाउ सेकेंड पार्ट इसी का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट दिस, दैट इज 0। ये क्या आ जाएगा? x माइनस 0। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। So these are the solutions of this third and fourth part. Very simple. I hope you understood. Pause the video to note down. Now come to last part of this question. Find the equation of tangent normal. Same question is there. X is given, y is given, and we have to find the equation of tangent normal at t equal to pi by 4. So in last 4 parts of this question, points were given to you, but in this points is not given to you. So first of all we will find out the points at which that we can find out the value of tangent. So points कैसे निकालेंगे? x और y पॉइंट है, t यहां पुट करेंगे, so x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos pi by 4, y इज इक्वल टू sin pi by 4. so जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? cos pi by 4 होता है 1 upon root 2, sin pi by 4 होता है 1 upon root 2, x and y. So these are the point now. Now we have to find out the equation of tangent and normal at this point. Now सबसे पहले slope of the tangent. तो slope कैसे निकालेंगे? x and y. This is parametric form कि function x and y is associated with t. So first of all, to find out dy upon dx, we have to find dy upon dt, dx upon dt. So dy upon dt निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? dy upon dt, that is cos t. dx upon dt निकालेंगे, that is minus sin t. तो ये कितना बन गया? माइनस cot t. Now we have to find the slope at point 1 by t. कितना दे रखा है हमें? जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं? ये t पे निकाला जा रहा है. देखो t is the point. यहां पे ये वाले पॉइंट पुट नहीं होंगे, ये t होगा. तो when t is equal to pi by 4, so that is equal to minus cot pi by 4 minus 1. Now we will find out the equation of tangent and equation of tangent. Now everything is with us. Slope is given, points are with us. So equation of tangent is y minus y1 equal to dy upon dx at t is equal to pi by 4 x minus x1. Now x1 and y1 जो पॉइंट है वो ये हैं जो हमने यहां से t की वैल्यू pi by 4 पुट करके निकाले हैं. So y minus y1 कितना है? 1 upon root 2. स्लोप कितनी है? -1. x माइनस x1 कितना है? x माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो y माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन रूट 2. टेक दिस टर्म दैट साइड. सो ये कितना आ गया? x प्लस y. ये भी माइनस, ये भी माइनस. सो माइनस 2 टाइम 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0. सो x प्लस y कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0. This is what? This is equation of tangent. Now, equation of normal. Equation of normal कितनी आएगी? y minus y1 minus 1 upon dy upon dx x minus x1. So y minus y1
y माइनस 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन रूट टू. सो y माइनस 1 अपॉन रूट टू ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1 अपॉन रूट टू. इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर लाते हैं, वन इज द सेम थिंग. इसको इधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू 0. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. So these are the solution of, this is the solution of this question. It's very important question according to paper point of view. That's why I written here important. Pause the video to note down. Again, very good and important question. Find the equation of tangent line. We have to find the equation of tangent line to the curve. Curve की equation दे रखी है, which is parallel to the line. इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टेंजेंट होगा, इसकी जो स्लोप होगी लाइन की, वो पैरेलल होगी किसकी स्लोप के? लाइन के. क्योंकि अगर इसका टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी? इक्वल होगी. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज क्या है वो? y is equal to x square minus 2x plus 7. So find out slope. Slope of tangent to the curve. तो वो क्या होगी? dy upon dx is equal to 2x minus 2. और या फिर 2 कॉमन x minus 1, कुछ भी लिख सकते हैं. Now first part, ध्यान से देखें. दिस इज पैरेलल टू द लाइन. ये क्या है? लाइन के पैरेलल है. सो पैरेलल टू द लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ये भी आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो में. सो माइनस 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज 2. सो स्लोप ऑफ लाइन आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ATC भी कर सकते हैं. According to the condition. So this slope या जो भी equation of tangent है that is parallel to the line, it means both the slopes are equal. जब parallel होंगे तो इसका मतलब dy upon dx जो निकाला slope of tangent is equal to slope of line. So मैं लिख सकता हूं dy upon dx is equal to 2. तो dy upon dx कितना है? 2. x minus 1 is equal to 2. Cancel out. So x minus 1 equal to 1, x is equal to 2. So now x is equal to 2. Put x is equal to 2 in equation first, so that we will get the point of equation to find out the equation of tangent line to the curve के ऊपर. So y is equal to 4 minus 4 plus 7 that is 7. So points कितने मिल गए हमारे पास? Points आ गया x की वैल्यू 2, y की 7. और स्लोप ऑलरेडी पैरेलल है, तो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप कितनी है हमारे पास गिवन? 2. क्योंकि पैरेलल में इस लाइन की स्लोप और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकलेगी वो सेम होगी. सो मैं यहां लिख लेता हूं स्लोप इज इक्वल टू 2. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx स्लोप एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1. सो y माइनस 7 इज इक्वल टू dy अपॉन dx कितना दे रखा है? 2. पॉइंट के ऊपर x माइनस 2. So y minus 7
इक्वल टू 2x माइनस 4, y माइनस 7 इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, टेक दिस टर्म दैट साइड, 2x माइनस y, ये प्लस 7 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. So this is the equation of tangent to the curve which is parallel to the line. Now second part, this we have to find the equation of tangent line to the curve which is perpendicular to the line. यानी कि जो इसकी स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के. इसका मतलब अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1. सो दैट कॉन्सेप्ट विल यूज हियर. अगेन हमने ये स्लोप, टेंजेंट की स्लोप निकाल रखी है. सेकेंड पार्ट में हम लोग बी पार्ट में क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे. कौन सी लाइन, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13. सो वो स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. माइनस x का कोफिशिएंट कितना है, -15, तो ये क्या हो जाएगा, +15. y का कोफिशिएंट 5 है तो दिट इज बिकम 3. नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट. पॉइंट कैसे निकलेंगे, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू -1. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्लोप कितनी है, 2x माइनस 2 कर्व की, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन कितनी है, जो गिवन लाइन है 3, दैट इज इक्वल टू -1. तो 3 2 6x माइनस 3 2 6 इक्वल टू -1. 6x इज इक्वल टू 5, x is equal to 5/6. Now we have to find out the value of y. Put this in equation 1. Put in equation 1. So जैसे ही मैं 1 में इक्वेशन में पुट करूंगा, so हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बनेगा y is equal to 25/36 minus 2 into 5/6 plus 7. Take the LCM. Before that, just pause the video to note down so that I can rub the board. So मैं यहां से मिटा लेता हूं इस A पार्ट को. I hope you understood this A part. So y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी y की, दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ B पार्ट है, y आ गया, दैट इज 36 इज द एलसीएम, क्योंकि कितना था 525/36, तो ये बना 25 माइनस 6 6 जा क्या होता है 36, 5 2 जा 10, 10 into 6 60 प्लस 36 एलसीएम है, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 को 6 7 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25, 6 7 जा 42, 4 7 3 जा 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, तो दैट इज 252. नाउ 252 में से 60 माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास 192. 192 में 25 ऐड कर देते हैं, दैट इज 7 11 और 217. सो y इज इक्वल टू 217/36. सो क्या ये किसी से कैंसिल हो सकता है? अगर देखा जाए तो 3 से देखें तो ये कैंसिल नहीं होगा, 4 से देखें, 7 से देखें तो 7 से भी ये कैंसिल नहीं होगा. सो ये y की वैल्यू आ गई. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ जो पॉइंट्स हमें मिले वो पॉइंट्स क्या थे? वो पॉइंट्स आए x की वैल्यू
कितनी, y की वैल्यू हमारे पास ये है, x की कितनी वैल्यू आई थी, दैट इज 5/6, y की कितनी आई 217/36. Now we have to find out the equation of tangent. Equation of tangent to the curve. So वो क्या होगी, y minus y1 dy upon dx x1 y1 x minus x1. Now first of all we have to find out the slope, क्योंकि जो लाइन की स्लोप थी, ध्यान से सुने, जो लाइन की स्लोप थी, लाइन की स्लोप कितनी आई थी, लाइन की जो स्लोप आई थी वो 3 आई थी, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1. तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कैसे निकाली जाएगी, m1 into m2 -1. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है, ये स्लोप ऑफ लाइन है, परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल. सो m1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन क्या थी, स्लोप ऑफ लाइन वो थी 3. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कितनी आ गई, -1/3. सो dy upon dx at this point is m1 equal to -1/3. So y minus 217/36 equal to -1/3 x minus 5/6. So you can take LCM 36 minus 36y minus 217/36 equal to minus x. 3 बाहर ही रहने देते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं. सो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 6 एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/6x minus 5, और 6 बाहर निकल गया तो दैट इज 18. कैंसिल आउट, 18 2 जा 36. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 36y minus 217 इज इक्वल टू माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को भी 12x, देन -2 अगेन प्लस 10. अब इसको सबको इधर ले जाते हैं, 12x प्लस 36y minus 217 minus 10 equal to 0. 12x 36y minus 227 is equal to 0. If you want to take the common, you can take, otherwise leave as it is. This is your answer. Pause the video to note down. Now solve all the questions from problem 11 to problem 15 of this exercise. And if you face any kind of difficulty while solving or to understand the solution, then you can just write on a comment box. Till that, Jai Hind.